আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, প্রিয় বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি। এই ভিডিওতে একটি হিন্দু মেয়ে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যকে বলে সে তার এক বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করেছিল যে একজন মানুষকে আমিষাশী খাবার অর্থাৎ পশু প্রাণীর মাংস খাওয়া উচিত নাকি নিরামিষাশী খাবার অর্থাৎ শাকসবজি খাওয়া উচিত। আর উত্তরে তার বান্ধবী বলল, একজন মানুষের পশুর মাংস খাওয়া আর শাকসবজি খাওয়া একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ যদি নিজে শুধুমাত্র শাকসবজি খেয়ে থাকে তাহলে সে অন্যকে শাকসবজি খেতে বাধ্য করতে পারে না। আর যারা শাকসবজি খেয়ে থাকে এবং নিজেকে নিরামিষাশী বলে পরিচয় দেয় তারাও সাধারণত আমিষাশী হয়ে থাকে, কারণ গাছপালা থেকে ভেঙে খাওয়া ফল ও শাকসবজি গাছ থেকে আলাদা হওয়ার পর আর সেটা নিরামিষাশী থাকে না। তাই সেই হিসাবে শুধুমাত্র ফল ও শাকসবজি খাওয়া নিরামিষাশী ব্যক্তিরাও এক প্রকার আমিষাশী হয়ে থাকে। সেই হিন্দু মেয়ের একথার উত্তরে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি বলে, পশুর মাংস খাওয়া আমিষাশী ব্যক্তিরা নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য এমন কিছু যুক্তি দিয়ে থাকে যার কোনো ভিত্তি নেই। আর নিরামিষাশী ও আমিষাশী খাবারের কোনো তুলনা নেই, কারণ নিরামিষাশী খাবার অর্থাৎ চাল ডাল ও শাকসবজির প্রাণ নেই, তাদের কোনো অনুভূতি নেই। তাই সেগুলো খেলে আমাদের উপকারও তো হয় বটে, সেই সাথে সেগুলোর কোনো ক্ষতিও হয় না। আর কেবলমাত্র নিরামিষাশী খাবারগুলোই মানুষের খাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, কোনো পশু প্রাণীকে মানুষের খাবার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। কারণ পশুদেরও মানুষের মতোই প্রাণ রয়েছে, তাদেরও অনুভূতি রয়েছে, কষ্ট পেলে তারাও মানুষের মতো ব্যথা অনুভব করে থাকে। তাই কোনো পশুকে শুধুমাত্র নিজের তৃপ্তি পূরণ করার জন্য বা নিজের মুখের রুচি পরিবর্তনের জন্য হত্যা করে কেটে খাওয়া কখনোই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। আর তাই নিরামিষাশী এবং আমিষাশী খাবারের তুলনা করা সঠিক নয়। বন্ধুরা, হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের বলা এ সকল কথাগুলোর ভিডিও ক্লিপটি আমি আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। এছাড়া ডক্টর জাকির নায়েক এ বিষয়ে কী বলছেন সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। তাই এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, প্রথমে আমি আপনাদের সাথে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করতে চাই। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো নিজেই তার মুখে শুনুন। मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था कि ज़्यादातर मेरे को क्या मतलब किसी भी इंसान को ज़्यादातर क्या खाना चाहिए, नॉन वेज या वेज। तो उस इंसान ने मतलब उस बंदे ने बोला कि भाई देख, वो उस इंसान मतलब किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर मन में क्या है। जैसे अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन ही खा सकती हूँ। अब मैं दूसरे की वो नहीं कर सकती कि वो बंदा वेजिटेरियन ही खाए, अब वो उसके अंदर है कि वो नॉन वेजिटेरियन खाए या वेजिटेरियन खाए। लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने ये बोला कि अगर तू मतलब वेजिटेरियन है पर तू किस हिसाब से वेजिटेरियन हो सकती है। मान ले कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज़ को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। तो मैंने उसका जवाब फिर नहीं दे पाई मैं। अब आप दीजिएगा जवाब। देखिए, ऐसा है, जो मांस खाने वाले लोग हैं वह ऐसी दलीलें रखते हैं। अब जो सात्विक दाल चावल रोटी खाने वाले हैं वो कुछ समझदार हैं तो उत्तर दे पाते हैं, कुछ समझदार अर्थात वो जानकारी ना होने से उत्तर नहीं दे पाते। उत्तर यह है, आप गेहूं खाइए, वो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं, खून नहीं निकलेगा। आप किसी मुर्गा को पकड़िए, चिल्लाएगा, चीखेगा, काटोगे तो खून निकलेगा। उस मुर्गे की आंखें हैं, उसका दिल धड़कता है, उसका भी हमारी तरह ही बनावट है, लगभग कुछ हमारी तरह खून है, हमारी तरह उसकी भी हड्डियां हैं, हमारी तरह मतलब वो प्राण हैं, सांस लेता है। तो उसमें और गेहूं में, अब आप कहो एक तरफ मुर्गा खड़ा करो, एक तरफ गेहूं खड़ी करो, तो गेहूं आप खाओ, ना चीखेगी ना चिल्लाएगी मुर्गा। गेहूं खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है। हिरन को शेर खाता है, उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर का शिकार, शेर का भोजन वही है, मांसी है। गाय चारा खाती है, उसका वही भोजन है। ऐसे इंसानों के लिए ईश्वर ने गेहूं चावल दाल रोटी मसाले मिर्ची बनाई है ना। मुर्गा नहीं बनाया हमारे लिए। मुर्गा हमारे, बिल्ली मुर्गा खाए, बिल्ली चूहा खाए तो समझ में आता है, क्योंकि बिल्ली के लिए वही उपयुक्त है शायद, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए भगवान ने दाल चावल सब्जी रोटी। अब आप कहें कि नहीं जी दाल चावल भी वही है, नहीं,
सबकी तुलना सबसे एक तराजू में सबको नहीं तौल सकते। सोनार की तराजू में आलू नहीं तौला जा सकता और आलू वाले की तराजू में सोना नहीं तौला जा सकता। दोनों की तराजू अलग अलग होती है। বন্ধুরা, আপনারা হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার বলা কথাগুলো শুনলেন ও বুঝলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, যেটাতে তিনি বলছেন যে বেশিরভাগ অমুসলিম ব্যক্তিরা মনে করে পশু বা মাংস খাওয়া হারাম একটি কাজ, আর এর পিছনে তারা যে যুক্তিটি দিয়ে থাকে তা হলো পশু প্রাণীদের প্রাণ আছে, তাদের অনুভূতি আছে এবং তারাও মানুষের মতো ব্যথা অনুভব করে। আর যেহেতু নিরামিষাশী খাবার অর্থাৎ শাকসবজির প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই, তাই শাকসবজি খাওয়া উচিত। অথচ বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে গাছপালার মধ্যেও প্রাণ রয়েছে, তাদেরও অনুভূতি রয়েছে। আর এ গবেষণাটি সফল হওয়ার পর অমুসলিম ব্যক্তিরা এ যুক্তি দিয়ে মাংস খাওয়াকে নিষিদ্ধ প্রমাণ করতে চায় যে যেহেতু গাছপালা ব্যথা অনুভব করতে পারে না আর পশু প্রাণী ব্যথা অনুভব করে, তাই পশু পাখি হত্যা করে খাওয়া একটি বড় অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আজকের বর্তমান বিজ্ঞান এটাও গবেষণা করেছে যে গাছপালা মানুষ এবং পশু প্রাণীদের মতোই ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু মানুষ তা শুনতে পায় না। তারপর ডক্টর জাকির নায়েক মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হালালকৃত পশু প্রাণী খাবার যে হুকুমটি দেওয়া হয়েছে তা তিনি পবিত্র কোরআনের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এমনকি তিনি হিন্দুদের বিভিন্ন ধার্মিক গ্রন্থে ছাগল ও গরুর মাংস খাবার উল্লেখ থাকা কথাটিও রেফারেন্স সহ বর্ণনা করেছেন। আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করতে চাই। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো শুনুন। उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है, भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ हाँ जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेकर 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 साइकिल्स पर सेकंड से लेकर 40,000 साइकिल्स पर सेकंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते, सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं। कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं,
बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर ईट द थिंग टू बी ईटन, ही इज नॉट डूइंग अ सिन, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 31 में, कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में, कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी। বন্ধুরা, আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন।